Friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Pisces Ascendant and the predictions for the month of April 2023. Now, for the month of April, Ascendant Lord Jupiter will be in the first house till 21st of April, and then it will move to its friendly sign of Aries on 22nd of April. Now, Jupiter is a natural significator of the second house, and its movement here would mean that from 22nd of April to 5th of May, Jupiter will bring in new sources of earning and cash flow, as well as the positive changes on the professional front, because it is going to aspect the 10th house through its ninth aspect. So you can expect some kind of a positive news on the professional front after Jupiter moves in the second house on 22nd of April. In this month, there is also going to be an exchange of the second and the fourth house lords. Mars is sitting in the sign of Mercury and Mercury is sitting in the sign of Mars. But the problem here is that both the lords are enemies of each other, and due to this, the domestic environment will remain uneasy in the month of April. Sixth house lord Sun will be in the ascendant till 13th of April, and then it will move to the second house on 14th of April. So time frame from 14th April to 21st of April will be very good from a job or a service point of view. But Sun here is not going to give you the desired results it usually gives when it is alone, because Sun here is in an exalted position, but its effect are going to be dampened by the presence of Rahu. Rahu will spoil the good results that Sun would have given if it was alone. You also need to be careful about what you talk to your family members, especially in the first week of April. And again, Rahu has a role to play in the same. For your ascendant, Moon is the fifth house lord, and Moon changes its positions very quickly. So, Pisces ascendant people usually get emotionally sensitive kids, and they themselves find it very difficult to focus on their studies unless their Moon has a benefic impact of Jupiter or Venus in their birth chart. Fifth house also indicates studies. So if you're a student, then the best time to appear in a competitive exam is between 18th and 19th of April. If you're involved in speculation, then the moment Jupiter enters into the second house, luck will turn for you in the month of April. So time frame of 22nd April to 30th of April will be a good time for swing trading or short-term trading. Pisces ascendant people has movable signs in both the second house as well as fifth house, and that is why a short term or a swing trading is far more beneficial from them from the earnings point of view rather than the long term investment trading, which is followed by some other fixed sign ascendants. Now there are also certain dates where you need to be very careful and you should avoid taking any key decisions. So these days in the month of April for you are 2nd and 3rd of April, 7th and 8th of April, 16th and 17th of April, and 29th and 30th of April. Don't take any key decisions during these 8 days. In a nutshell, stars at the moment are very strong in April. Jupiter will be in its own sign for most of the month, and then it will move to its friendly sign. Sun is in an exalted position. Venus is in its own sign. Saturn is in its own sign. And Mars and Mercury are also changing places. The time frame of the beginning of the month, especially for the first week of April, will be very tricky to negotiate for you, because Sun will be passing through the first house in the first week and it will create ego issues with people around you. But situation around you will start to gradually improve from the 8th to 21st of April, and from 22nd of April to 5th of May, with the Jupiter's transition in the second house, you will have a substantial cash flow coming into the picture. So that's the summary for you for this month. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मीन लग्न वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, मीन लग्न के स्वामी गुरु 21 अप्रैल तक प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे और इसके बाद 22 अप्रैल से ये अपने मित्र राशि में यानी कि मेष राशि में द्वितीय भाव में चले जाएंगे। अब गुरु द्वितीय भाव का ही कार्यकत्व दिखाता है, इसीलिए जब ये यहाँ मूव कर जाएगा तो उसके बाद 22 अप्रैल से लेके 5 मई तक ये आपके लिए नए
सोर्सेस से इनकम या कैश फ्लो लाके देगा। इसके अलावा गुरु की नवी दृष्टि 10वें भाव पर भी पड़ेगी और धीरे धीरे ये आपके प्रोफेशनल जगह पर चेंजेस करने लगेगा और आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। या तो आपको नई नौकरी दिलवाएगा या फिर आपको प्रमोशन दिलवाएगा अपनी करंट जगह पर। और अगर आपको गुरु की महादशा इस समय चल रही होगी इस साल में, तो आपको ये परिणाम डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके अलावा अप्रैल के महीने में द्वितीयेश और चतुर्थेश का स्थान परिवर्तन हो रहा है। मंगल बुध की राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव में बुध मंगल की राशि में बैठे हैं। अब नॉर्मली द्वितीय और चतुर्थ भाव के स्वामियों का आपस में स्थान परिवर्तन अच्छी पोजीशन कहलाता है, लेकिन यहाँ पे जो समस्या हो रही है वो ये है कि बुध और मंगल दोनों ही आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। इसलिए अगर आप घर की शांति या गृह सौख्य की बात करेंगे तो वो इस समय में अप्रैल में थोड़ा सा अड़चन में पड़ता हुआ नजर आता है। एक नज़र सूर्य पर भी डालते हैं। सूर्य आपके लिए षष्ठेश बनते हैं और ये 13 अप्रैल तक आपके लिए लग्न स्थान से गुजरते रहेंगे। तो लग्न स्थान से जाता हुआ सूर्य हमेशा व्यक्ति में अहम जगाता है और इसीलिए लोगों से झगड़ा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये षष्ठेश भी है। तो इस समय में लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचिए 13 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने लग जाएंगे और 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक का समय कार्य क्षेत्र पर लोगों के लिए बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य को जो आपको परिणाम देना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च राशि में बैठा हुआ है अपनी, लेकिन उसके साथ राहु बैठकर उसको ग्रहण लगा रहा है और उसके परिणाम देने की क्षमता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसलिए आपको इस समय में सूर्य के पूरे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपको अप्रैल के महीने में खास करके पहले हफ्ते में आप अपने परिवार वालों के साथ क्या बात करते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आपके परिवार वालों के साथ आपका मतभेद और मनमुटाव हो सकता है। आपके लग्न के लिए पंचम भाव के स्वामी चंद्र बनते हैं। अब चंद्र हर घर से 2.25 दिनों में निकल जाते हैं और इनका मूवमेंट बहुत तेज होता है। इसलिए मीन लग्न के लोगों को हमेशा ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कि इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनका स्वयं का भी पढ़ाई में ध्यान बहुत मुश्किल से लगता है। अगर इनकी लग्न कुंडली में चंद्रमा पे गुरु या शुक्र की दृष्टि होती है तभी फिर ये पढ़ाई में अच्छा कर पाते हैं, नहीं तो इनको कंसंट्रेशन की समस्या हमेशा जीवन भर रहती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय है वो 18 और 19 अप्रैल का है। इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें निकलने की संभावना भरपूर होगी। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट से भी संबंध रखते हैं तो जैसे ही गुरु 22 अप्रैल को द्वितीय भाव में एंटर कर जाएंगे तो आपके लिए बचा हुआ महीना यानी 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय शेयर मार्केट में पैसा कमाने की दृष्टि से सबसे अच्छा है। मीन लग्न वाले लोगों के द्वितीय भाव और पंचम भाव दोनों में चर राशि पड़ती है। इसलिए इनको छोटे समय में की हुई ट्रेडिंग, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, या जहां आप पैसा सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए लगा के निकाल लेते हैं, उस तरह का ट्रेडिंग का स्टाइल ज़्यादा सूट करता है बजाय स्थिर लग्न वालों के, जहाँ पे कि लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके वो पैसे बना सकते हैं। ये यहाँ पर बैठा हुआ है चंद्र की राशि की वजह से भी होता है, क्योंकि चंद्र का मूवमेंट इतना तेज होता है कि इनको हमेशा अंदर बाहर करते रहना पड़ता है ट्रेड्स में से। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए और ये वो दिन है जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से निकलता है। तो आपके लिए जिन दिनों में अप्रैल में आपको सावधान रहना है वो है 2 और 3 अप्रैल, 7 और 8 अप्रैल, 16 और 17 अप्रैल और 29 और 30 अप्रैल। इन 8 दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। अगर आप कुल मिला के अप्रैल का महीना देखें तो स्टार्स बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य अपनी उच्च राशि में विराजमान है, गुरु भी 21 अप्रैल तक अपनी राशि में है, फिर बचे 10 दिन मित्र राशि में है और बुध और मंगल का स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो अगर आप खाली पहला हफ्ता छोड़ दें अप्रैल का, जिसमें समय थोड़ा सा मुश्किल निकलेगा, लेकिन उसके बाद 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का समय आपके लिए माहौल अनुकूल बनाएगा और 22 अप्रैल से लेकर 5 मई तक में आपके पास काफ़ी धन आने की संभावना रहेगी। साथ ही प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।